Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. جی سید صاحب استقبال خوش آمدید، کیسے ہیں صاحب؟ بس اللہ کا فضل ہے، آپ بتائیے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی جناب، حکم کریں۔ آپ اچھا اسمارٹ لگ رہے ہو، آئینہ پہن کر بہت اسمارٹ دکھ رہے ہیں آپ کا آئینہ سر لیجیے سر اتار دیتا ہوں، یہ ارے نہیں آپ اچھے دکھ رہے بھائی، آپ کا چشمہ بہت اچھا ہے، بیوٹیفل ہے۔ شکریہ جی سر۔ سید صاحب کہیں۔ ارے ان کو آ جانے دیجیے نا، 2 منٹ کے لیے آ جائیں گے انہوں 2 منٹ میں۔ شرما صاحب سے آپ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ ہاں اچھا ان کا تھوڑا سا نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا، ان کو میری آواز اب تک تو جا رہی تھی لیکن اب کچھ مسئلہ ہو گیا شاید، تو واپس جڑیں گے تو پھر آپ آ جائیں گے۔ اچھا میں یہ بتا رہا ہوں، میں اور ایک بک لکھ رہا ہوں، یہ جو ہے سو یہ اسلام سے کوئی تعلق اچھا نہیں ہے۔ پہلی جو بک آپ نے لکھی تھی اس کی کتنی کاپی بیچی آپ نے سید سے؟ میں ابھی چیک ہی نہیں کرا، نہیں پھر بھی کچھ مطلب غالباً کچھ تو آئیڈیا ہوگا نا کہ آپ نے کتنی کاپیز بیچی ہیں؟ نہیں میں چیک ہی نہیں کیا، وہ جہاں پر جو امیزون پہ چیک کرنے کا ضرورت ہے وہ ہے، میں وہاں پر گیا ہی نہیں ابھی، کیونکہ میں بزی ہوں، میں دوسری کتاب شروع کر دیا ہوں، تو مجھے پیسوں کا اتنا وہ انٹرسٹ نہیں ہے، میں پیسہ بنانے کے واسطے نہیں کیا یہ سب کام، اتنی محنت۔ پیسہ بنانے کے لیے ظاہری طور پر چلیے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس انٹینشن کے ساتھ تو لکھی ہوگی نا کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس سے علم حاصل کریں، یہ تو آپ کا ہوگا نا نظریہ۔ خیر لیکن چلیے سرما صاحب واپس آئے ہیں اور ان کی بات مکمل پوری کرنے دیتے ہیں ان کو، پھر آپ سے بات کریں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ سید صاحب ہے اور ہمارے کیا بولتے ہیں ایک مزمل صاحب ہیں، یہ 2 حضرات ہیں۔ تو سید صاحب سے تو ہم بات ہوتے ہی رہتے ہیں، مزمل صاحب سے ذرا ایک بار پوچھ لیتے ہیں۔ جی مزمل بھائی۔ جی ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی آپ تو دانیال صاحب نہیں ہے نا جن کے متعلق سرمد صاحب پوچھ رہے ہیں؟ نہیں دانیال نہیں ہوں، میرا نام مزمل ہے، میں نا سرمد احمد نام ہے نا ان کا، انہی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی حکم۔ جی آپ نے کوسچن اٹھایا تھا کہ فینائٹ ایکشن کے انفینائٹ اللہ جہنم کیوں دے گا، یعنی کہ محدود اعمال کرتا ہے انسان اور انفینٹ اس کی جہنم ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا جہنم میں۔ تو میرا کوسچن تھا آپ سے کہ آپ نے اس کا آنسر لینے کی کوشش نہیں کی، اس کوسچن کا لوجیکل آنسر آپ کو ملا نہیں؟ دیکھیں آنسر تو میں عرض کرتا ہوں، آنسر جو ہے نا اس کے آنسر میں ہمیں جلیبیاں ملتی، بہت ساری جلیبیاں، کوئی لاجیکل جواب نہیں۔ اگر میں آپ کو اس چیز کا لاجیکل آنسر دوں تو آپ ایکسپٹ کریں گے یا بس ایسے جلیبی بول دیں گے اس چیز کو؟ ہوگا تو کیوں ایکسپٹ نہیں کروں آنسر دوں گا آپ کو، لاجیکل ہوگا تو کیوں ایکسپٹ نہیں کروں گا؟ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں سورہ الانعام کی 27 اور 28 آیت یہ نکال دیں۔ آپ پڑھیں، اس وقت تو میرے سامنے اب نہیں ہے نا، آپ پڑھیں۔ جی اس کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر پڑھیں اس آیت کو پڑھیں جو آپ کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں دفعہ آواز کی نا، پتہ نہیں اللہ نے شاید بند کر دی، آپ کوئی غلط بات اللہ کی طرف نہیں، وہ میں یوٹیوب سے بھی آن کیا ہوا نا، اس کو اب کٹ کیا ہے تو شاید اس لیے وہ مسئلہ بن رہا ہے۔ آج ایک ورڈ پڑھیں۔ جی آیت ہے کہ اور اگر آپ چل پھر آواز چلی گئی، دیکھ رہی اللہ کے نشان ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا کہ آپ کو ایسی بات اسی طرح منسوخ کریں جو اس میں نہیں لکھی ہوئی قرآن میں، کوئی آپ اب نکال لینا سورۃ الانعام کی 27 اور 28 آیت آپ نکال لیں اسکرین پہ۔ چلیے نکال تو میں دیتا ہوں، سمیر سر تو نکال سکتے ہیں نا؟ چلیے نکال تو میں نے دیے پیارے بھائی، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پتہ نہیں آپ پڑھ پائیں گے نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی آواز بار بار چلی جا رہی ہے نا۔ لیجیے میں نے نکال دی۔ کون سی نمبر تھی؟ 27 یہی ہے، یہ والی جو آپ نے نکالی ہے۔ جی پڑھیں۔ یہ لکھا ہے اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں تو کہیں گے ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیت کو جھوٹلا نہ بتائیں گے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر نیچے لکھا آ رہا ہے کہ بلکہ جس چیز کو اس کے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے
जिससे इनको मना किया जाता था। यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। मेरे भाई इससे क्या साबित हुआ? तो इससे साबित होता है कि अल्लाह के पास इन्फिनिट नॉलेज है ना, तो उसे पता है कि अगर इन्हें मैं दोबारा भी वापस भेज दूं तब भी ये ऐसे गलत काम करेंगे। तो इन्फिनिट नॉलेज की वजह से अल्लाह ताला उनको हमेशा जहन्नम दे रहा है। मुज़म्मिल साहब अभी एक आपने बात करी, अब मुझे बात करने दें। अगर अल्लाह के पास इन्फिनिट नॉलेज है कि दोबारा जाके भी वही करेंगे तो इससे उनको सजा देते जाओ, तो एट दी फर्स्ट प्लेस भी तो अल्लाह के पास इल्म था ना, तो पहली दफा ही क्यों भेजा? फिर वैसे ही जहन्नम में फेंक देता। पहली दफा इसलिए भेजा, अगर वो खुद ही ऐसे फैसला कर देता, वो बाद में इतराज कर लेते कि हमें क्यों जहन्नम में भेज रहे हो। तो देखिए एतराज तो अभी भी हो रहा है कि एक और दफा भेजते तो हम ना करते। तो नहीं, वो तो उन्होंने देख लिया ना, अल्लाह को तो देख लिया ना उन्होंने, पहली लाइफ तो देख ली। मुज़म्मिल अब रुके, आपने कहा था लॉजिकल, सुने देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम वापस भेजे गए तो हम अब तेरी बात मान लेंगे, वो तो कह रहे हैं, तो उनको एक और चांस देना चाहिए। अब देखें, एक और चांस तो जो नहीं दे रहा वो गलत बात कर रहा है कि चांस दिए बगैर सजा दे रहा है। कोई अब दुनिया में कोई चांस दिए बगैर सजा देता है? आप एक दफा फेल हो जाएं तो क्या आपका एग्जामिनर आपको कहेगा दूसरी दफा भी फेल हो जाओगे, दूसरा चांस इसलिए नहीं दे रहा मैं? देखिए ये जलेबी है, ये जवाब नहीं है। ये जलेबी नहीं है। जब अल्लाह ने एक लाइफ दी है ना, तो एक ही फिर टेस्ट हो रहा है, तो सब कुछ अल्लाह ने बता दिया पहले। देखो यही तो सारा आर्गुमेंट मेरे दोस्त यही है, अगर गौर से आप सुने, सारा आर्गुमेंट यही है। अव्वल तो अल्लाह जिस चीज का टेस्ट ले रहा है वो उसने खुद बनाई है, सलाहियतें खुद दी हैं, कमजोरियां भी खुद दी हैं। सुनते जाए, आपसे पूछ के नहीं भेजा। फिर आपको जो है किस खित्ते में भेजना है वो नहीं पूछा। आपको आलिम के घर पैदा किया, मुसलमान के घर किया, शिया के घर किया, कादियानी के घर किया, कहाँ किया? हिंदू के घर किया, क्रिश्चियन के। फिर मौका एक गैब पे ईमान लाना है, एक मौका है, और फिर हमेशा की जहन्नम में। और फिर ये कि मुझे इल्म है, तू बार बार जाके ये करेगा इसमें तुम्हें हम बार बार सजा दूंगा। तो भाई अगर तुझे इल्मी है तो तूने भेजा ही क्यों? और ये सलाहियतें दी किसने हैं? ये सलाहियतें आपको दी किसने हैं? मुझे दी किसने हैं? मुझे जो है ये जो डाउटफुल माइंड दिया किसने दिया? खुदा ने दिया, किसी और ने दिया? जो डाउट कर रहा है उसकी इन बातों पे। तो ये जलेबी है, कोई जवाब नहीं है मेरे दोस्त। और कोई बात करें आप। अच्छा, इसमें सरमद साहब एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे भाई मुजम्मल भाई ने कहा कि भाई अगर अल्लाह बगैर उनको दुनिया में भेजे, बगैर इम्तिहान लिए उनको डायरेक्ट जन्नत जहन्नम के फैसले कर देता तो लोग एतराज करते। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह को फिर इंसान की खलकियत करने की जरूरत ही क्या थी? ना करता, ना जन्नत जहन्नम की खलकियत करता, ना इंसानियत की करता, ना जन्नत भेजता, ना जहन्नम भेजता, ना जो है लोग एतराज करते। लेकिन क्या अल्लाह ने लोगों को दुनिया के अंदर टेस्ट लेने के लिए सिर्फ इसलिए भेजा है और देने के लिए इसलिए भेजा है क्योंकि अल्लाह को डर था कि लोग एतराज करेंगे? अगर अल्लाह को ये डर था कि लोग एतराज करेंगे तो आपका खालिक की कायनात जो है वो तो खुद अपने आप में जो है ना मेरे भाई, फिर वो कमजोर साबित होता है, डरा हुआ साबित होता है, और वो अपनी कायनात के सामने ही जो है सरखम तस्लीम करता है कि भाई कहीं मेरी कायनात मुझसे सवाल ना कर ले। और अगर अल्लाह को इस बात का खौफ है, इस बात का डर है कि भाई मेरी कायनात मुझसे सवाल ना कर ले, तो फिर अगर किसी ने बाई चांस सवाल कर लिया फिर भी कि ए अल्लाह, तूने मुझे दुनिया के अंदर भेजा, तूने तो मुझे गैर मुस्लिम बनाया था, मुझे तो इस्लाम का पता ही नहीं, तो लिहाजा मैं कैसे इस्लाम कबूल करता? तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा सभी सब एक मौका और दे मुझे, एक और बड़ी अच्छी याद आई है, बहुत जबरदस्त। आपकी बात अपनी जगह 100% है। देखिए दो तरफ मैं नुक्ते और बयान करूंगा। देखिए अगर तो अल्लाह को डर था कि एतराज ना करें, एतराज तो फिर दूसरी दफा भी आ रहा है, वो बात भी हो गई कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि अल्लाह तू हमें भेज दे तो अब हम नहीं करेंगे। ये कहना कि मुझे पता है तुम नहीं करोगे, भाई मौका तो दो। एक बात, एक और बात, उससे बड़ी बात अब मेरे ज़हन में आ गई। ये साहब जो कह रहे हैं ना मुजम्मिल साहब कि अल्लाह ने ताकि अत्मा में हुज्जत हो जाए, तुम कह ना सको कि एक मौका दिया था इसलिए भेजा ना, तो भाई सवाल एक और पैदा होता है बहुत बड़ा। मुजम्मिल साहब इसका जवाब दीजिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो एक जो बुजुर्ग थे खिज़र, जिनके बारे में कहा जाता है, जो कुरान में वाक़या आता है कि एक बुजुर्ग मिले मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथ चले, तो आपको पता है कुरान में ये बात है कि उन्होंने एक बच्चे को कत्ल कर दिया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, कुरान में है ये, कि आपने इस बच्चे को क्यों कत्ल किया? तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने बड़े होके अपने माँ बाप को दुख देना था, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया। यहाँ पे कुरान में है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चा नहीं अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह तूने मुझे मौका तो दिया ही नहीं,
میں تو ابھی چھوٹا سا بچہ تھا اور تمہارا نبی کے ساتھ جو بندہ ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کہ ایک جرم کرنا تھا, مجھے اس جرم کے کیے بغیر کیوں تم سزا دے رہے ہو؟ تو آپ کی بات 100% اب ثابت ہو گئی کہ جلیبی ہے, کیونکہ آپ کے اللہ نے اس اصول پہ عمل نہیں کیا. اس نے پہلی دفعہ بھی موقع دیے بغیر سزا دی ہے ایک بچے کو, دیے کہ نہیں دی؟ موقع دیے بغیر سزا دی کہ نہیں دی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ایک اور موقع دے دو, ان کو بھی کہہ رہے کہ موقع نہیں دوں گا پھر بھی سزا دے رہا ہے. تو آپ کے بھائی کوئی جواب نہیں ہے, مذہب آپ کا اسلام ٹوٹلی irrational ہے. اور کوئی سوال ہو تو کیجیے, اور اس کا جواب دیجیے. یہ جو موسیٰ اور خضر والی بات میں نے کی, اس بچے کو کیوں موقع نہیں دیا آپ کے اصول کے مطابق؟ مزمل صاحب, لگتا ہے مزمل صاحب کے انٹرنیٹ کے اوپر پھر سے اللہ ہیلو تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا. جی سر. جی ہیلو آ رہی ہے آواز؟ جی جی ہاں جی بتائیے, وہ جو بچے کو قتل کیا تھا اس کو موقع کیوں نہیں دیا اللہ نے, اور اس کے نبی, اس کے ساتھ جو نبی کے ساتھ جو شخص تھا اس نے, اس کو کیوں موقع نہیں دیا کہ وہ ثابت کرے کہ اس کا گناہ ثابت ہونے کے بعد اس کو سزا ملنی چاہیے تھی نا, اس کو قتل پہلے کیوں کیا بچے کو؟ یہ بہانہ وہ بنا اللہ کے کو نالج تھا نا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچاتا بڑا ہو گیا. تو بھائی یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر اللہ ویسے ہی ڈال دیتا ہم سب کو بھی, کہ اس کو پتہ نہیں تھا ہم نے کیا کرنا ہے, میں نے اور سمیر صاحب نے کیا کرنا ہے. بغیر دنیا میں بھیجے, جب بچے کو بغیر گناہ کیے دوزخ میں پھینک دیا, قتل کر دیا, تو ہمیں کیوں بھیجا, ہمیں کیوں دنیا کے رگڑا دیا؟ کوئی آپ کی بات بنتی نہیں ہے. آپ صرف یہ سرمد صاحب اس بچے کی جو امتحان تھا, اس بچے کا جو ٹیسٹ تھا, اس کی زندگی پوری کرنے کا اور وہ غلط کام کرنے کا یا صحیح کرنے کا, اللہ نے تو وہ بھی چھین لیا نا اس سے, وہ ٹیسٹ بھی نہیں دے پایا. اس سے کیوں چھینا پھر؟ آپ دیکھیں, میں اعتراض کر رہا تھا کہ دوسرا موقع نہیں دیا, آپ نے کہا دوسرا موقع اس لیے نہیں دیا دوبارہ یہ کرتے, تو بھائی اس بیچارے کو تو پہلا موقع بھی نہیں ملا. اگر پہلا موقع نہیں اس کو نہیں ملا تو پھر کسی کو بھی پہلا موقع نہ دیتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں, دیکھیں ٹیچر جب امتحان لیتا ہے نا, ٹیچر نے وہ اسٹوڈنٹ کو صلاحیتیں دی ہوئی نہیں ہوتی, وہ نیچر سے لے کر آتا ہے. وہ دیکھتا یہ کہ یہ اپنی نیچر نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں اس کو استعمال کر کے پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. خدا جب امتحان لے رہے تو ساری صلاحیتیں خدا نے دی ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کوئی مثال کے طور پہ ایپل والے ایک فون بنائیں اور بڑی مارکیٹنگ کریں کہ جیسے ہے نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا نہیں ہے میرے دوست مزمل صاحب؟ یہ بالکل ہے. ایپل والے یہ کہیں کہ ہم اشرف آئی فون بنا رہے ہیں, سب سے بہترین آئی فون بنا رہے ہیں, اور پتہ یہ چلے کہ 90% آئی فون جو ہے وہ آگ میں پھینکنے پڑے لوگوں کو, جالی پھٹ جائیں, آگ سے پھٹ جائیں. اب ایپل والا خودکشی کر لے گا نہیں میں نے کیسی اشرف آئی فون بنایا. تو اللہ نے جو اشرف المخلوقات بنائی اس کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ میرا ارادہ پورا ہو کر رہے گا, میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. تو نہیں, یہ آئے تھا قیامت والے دن جب کافر کہتے تھے نا کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے, تب اللہ کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا, اب میں بھر کے رہوں گا. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے, لیکن میری طرف سے بات قرار پا چکی کہ میں جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر کر رہوں گا. وہ قیامت والے دن منظر کی بات ہو رہی ہے. اس آیت میں کر رہا ہوں کہ اللہ کا پروڈکٹ فیل ہو گیا نا. اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی, ایسی بنائی کہ جس کی اکثریت اس کو خود دوزخ میں ڈالنی پڑی. یعنی مثال میں دے رہا ہوں کہ ایپل نے اس نے اپنی مرضی سے نہیں ڈالی, وہ فری ول سے گئے ہیں, اپنی فری ول, اس کے پاس نالج میں تھا پہلے سے. مجھے دیکھیں, میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار یا رب یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا, مجھے پوچھ کے بھیجا اس امتحان گاہ میں, آپ کو پوچھ کے بھیجا ہے, سمیر صاحب کو پوچھ کے بھیجا ہے, کیا ہمیں سلیبس دیا, کیا ہمیں دوسرا میں ملتا ہے نا کہ اللہ نے پہلے پوچھا تھا انسان سے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے یادداشت بلا دی. مزمل صاحب اس کا سوال کا جواب دے دیں. آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے اللہ نے آپ سے پوچھا تھا؟ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں. نہیں, اگر یاد رہے تو پھر وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. جو چیز آپ کو دیکھیں, یہ تو ایسے ہی ہے, آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے مجھے 50 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا, لائیں ذرا, آپ کو یاد نہیں ہے. اس میں سرمد صاحب ایک مزیدار بات ابھی بھائی نے کی کہ میں نے آپ کو 50 لاکھ روپے دیے, آپ نے وعدہ کیا میں واپس کروں گا, پھر میں نے آپ کے سر پہ ایک ڈنڈی ماری اور آپ کی یادداشت چلی گئی. لیکن آپ نے چونکہ کہا تھا 50 لاکھ روپے دیں, یہ کیسی بات ہے کہ اللہ نے کہا تھا یاد کسی کو نہیں ہے, تو اس کے اللہ ہونے کا فائدہ کیا جو یاد نہیں ہے؟ اس کے لیے ایک مثال میں بھی دے رہا تھا سرمد صاحب. ایک ٹیچر نے بچوں کو پڑھایا, پورا سلیبس پڑھایا پورے سال, اور آخر میں جو ہے ایک ایکسیڈنٹ میں بچے کی یادداشت چلی گئی. اب ٹیچر جو ہے اس کو پیپر دیتا ہے, پین دیتا ہے اور بولتا ہے ایگزام پیپر لکھو جو میں نے پڑھا.
क्या भाई वो लिखेगा? किधर से लिखेगा, उसको तो याद ही नहीं है, लिखेगा। उसकी तो याददाश्त चली गई, उसको ये याद नहीं कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। अगर वादा लिया था तो याद होना चाहिए था। पर्पस क्या था उस वादे का, मुझे बताओ। अगर याद नहीं हो रहा है, अगर मुझे याद होता, हाँ मैंने कहा हुआ है या खुदा मैं तेरी बातें मानूंगा, तो मैं जरूर मानता। आपको भी याद नहीं है, आपके मौलवियों को भी याद नहीं है, आपके नबी को भी याद नहीं है, तो ऐसा वादा लेने का फायदा क्या? तो ये सारी जलेबी है मेरे भाई, ख्याली कहानी है, मानते रहे आप। कोई लॉजिक टेस्ट है था ना, आपको? फिर ऐसा अगर याद होता हमें, फिर तो हम सब ही अच्छे काम करते, जन्नत में चले जाते। फिर टेस्ट की चीज का होना, तो या वो अच्छा, गैर की चीजों। प्यारे भाई फिर वादा क्यों लिया था? अगर अगर हमें फिर वादा लिया क्यों था जब याद ही नहीं ताकि रखवाना? हम क़यामत वाले दिन क्वेश्चन ना कर सकेंगे, हमें क्यों तुमने ऐसे ही पैदा कर दिया हमारी मर्जी के बगैर। जब तो अल्लाह याद बता ही देगा नहीं ना रहा बाद तो में, फिर वो हमें इबादत याद कैसे आ होगी, जाएगा। बात भी है। समीर साहब ये तो एक मतलब साहब एक मरने के मिनट, बाद याद आएगा ना क़यामत वाले। ये तो और भी बड़ा धोखा है। देखिए वही वाली बात है कि आपको मैंने 50 लाख रुपए दिए थे, जब याद है आपको, और आपने कहा था मैं वापस करूंगा। उसके बाद मैंने आपके सर पे एक सोटी मारी थी और आप भूल गए थे। आपको याद होना हो, अब उनको मुझे देना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों वाली यार। हेलो। चलें, ये एक आयत ना और मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा वो तजाद कह रहे थे, कुरान की 49:11 और 7:176 आपने खुद मतलब के ना स्क्रीन पे लगाई थी मुझे पहले 10 मिनट दे दें। कि मोमिनों को अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने आप मतलब कि ना किसी का उल्टा नाम ना लो, नाम ना बिगाड़ो। और मैंने दिखा दिया ना सब कुछ, ये आप क्या कहना चाहते हैं, कहें। तो ये आयत मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आई थी, ये वाली नाजिल हुई हाँ थी, हाँ हाँ ये हाँ, नॉन मुस्लिम के लिए नहीं थी। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। इसका जी मतलब आपका अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। वो कहता है कि सिर्फ मोमिनों के नाम जलेबी न दे रखो। रहे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अगर यूके में, अगर अमेरिका में, और अगर यूरोप में आपके लिए अलग कानून हो और दूसरों की अलग, तो देखो आपकी चीखें आसमान तक जाएंगी, आसमान तक। सारे इंसान खुदा की नजर में बराबर है या फर्क है? फर्क असूल नहीं, एक मिनट, असूल सबके लिए एक होना चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। यानी आपको इजाजत है आप दूसरों को गालियां देते रहे, उनको इजाजत नहीं कि आपको गालियां दें। वाह क्या बात है, आप आसमान से आए, दूसरे दरख्त से हो गए। क्या बात है मुजम्मिल साहब आपकी, नहीं, गालियों की माशाअल्लाह। बात नहीं कर रहा, उल्टा नाम रखने की। मतलब हरामी ईमान का है वालों कुरान वहां में, पे आता है ना, हरामी जो का है ईमान कुरान ले में। आए। तो प्यारे दोस्त, हरामी कुरान ने कहा है गैर मुस्लिमों को, गालियां दी कुरान ने। नहीं, खंजीर वो तो का है, अल्लाह ताला उनके सुअर का बाप है। दादा को काफिर कहता है कि जो सच्चाई है वो बताता है ना, अब उनको बुरी लगे चाहे अच्छी लगे। देखिए जो इस तरह तो सच्चाई मुझे है, हकीकत, सुन ले, वो तो एक बतानी है बात ना सुन उसे। ले, एक मिनट मुजम्मिल साहब सुन ले। ऐसे मुझे भी अबू जहल एक आदमी लगता है, लेकिन मैं उसको कहता नहीं, मेरी तहजीब गवारा नहीं करती। मुझे भी एक आदमी लगता है जो आपके नजदीक बहुत बड़ा है, मुझे अबू जहल लगता है, मगर मैं कहता नहीं, मेरी तहजीब गवारा नहीं करती। आपकी झूठ बोलने तहजीब गवारा गवारा नहीं करती है, करती। दूसरों को अच्छा गालियां सरमद देना। साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सा, आपसे है, किसी और से नहीं। सरमद साहब, जी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर एक शख्स जिना की पैदाइश है, जनीम है, यानी कि हरामजादा है, बास्टर्ड सन, तो उसका जो बेटा होगा क्या वो हलाली हो सकता है? इन दोनों को ही बोलने दो, हम मुस्लिम्स चलते हैं। इन दोनों को ही बोलने दो, कोई फायदा नहीं है हमारा बैठने का यहाँ। चलिए आप खातून का जवाब दे दें। साइमा, साइमा सुनिए साइमा, देखिए आप 1 घंटे जिस से हम क्यू पे लोग एक एक्टिव मिनट थे मेरी हैं। बहन, एक मिनट मेरी बहन, आप जिस क्यू से आई हैं उस क्यू से आपको ऐड किया गया, आपको इज्जत देने के लिए मैंने पैनल पे बैठा लिया। एक भाई से बात हो रही है, 5 मिनट उससे बात करेंगे तब तो आपके पास आएंगे। ऐसा तो नहीं ना कि 2 बात उनसे करेंगे, 2 बात आपसे करेंगे। तो ये जो है ना, आकर के हमारे चैनल के ऊपर तानाशाही मत किया करो बहन। आपको इज्जत दी जाती है तो इज्जत आप भी वापस दो। 5 मिनट टाइम रखो, उनसे बात करके फिर आपसे बात करेंगे। तब तक आप बैक स्टेज रहो, क्योंकि मुझे पता है स्क्रीन पे ऐड करूंगा तो आप फिर से बोलो। तो शर्मा साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था, इसलिए पूछ रहा था कि कुरान के अंदर जो आयत आई है उतुल्लुम बाद ज़ालिका ज़नीम, इनके स्कॉलर्स का मानना है, वैसे तो 2-3 शख्स के बारे में है, लेकिन ये मानना है कि मोस्टली ये आयत जो है वो वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई है। अब आप ये देखिए कि वलीद बिन मुगीरा को कुरान जो है वो बेनसब हरामजादा कह रहा है, और उसके बेटे को, यानी कि उस जिना से पैदा हुए गंदे खून को, बदखून को, बदनस्ल को अल्लाह ने एक बेटा दिया, और उस बेटे को अल्लाह क्या कह रहा है? शैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद। आप ये देखें कि अल्लाह की जो बातें हैं वो कितनी मुनाफिकाना है। अगेन, एक शख्स को तो हरामजादा कहता है, उसके बेटे को जो है अल्लाह की तलवार कहता है। कोई क्राइटेरिया नहीं। समीर साहब बात पता क्या है, जब कोई शख्स किसी को कुछ गलत नाम देता है
اس کی دانش میں وہ واقعی ایسا ویسا ہوتا ہے، لیکن تہذیب گوارا نہیں کرتی. آج ہم جس دور میں ہیں، اگر میں مثال کے طور پہ آج یہاں کے پرائم منسٹر کو باسٹرڈ سمجھوں اگر، تو میں باسٹرڈ کہوں گا پھر بھی نہیں. میں مثال دے رہا ہوں صرف. اگر میں کسی کو ابو جہل سمجھوں، جن کو لوگ بہت القابات دیتے ہیں، میں نام نہیں دیتا، مگر میں ابو جہل اس کو کہوں گا نہیں. وہ شخص عمر بن ہشام ابو الحکم کہلاتا تھا. اس کو صرف نام ماننے کے نتیجے میں آپ نے ابو جہل نام دیا، یہاں تک کہ دنیا کا اصل نام بھول گئی. ساری دنیا آج اس کو ابو جہل کہتی ہے. آپ کے یہ کرتوت ہیں، آپ کا یہ اخلاقی معیار ہے، اور پھر یہ کہنا کہ جی مسلمانوں کے لیے ہے کہ دوسروں کے نام مسلمانوں کے نام نہ رکھے جائیں، غیر مسلموں کے جو مرضی نام رکھتے رہو. کیا بات ہے آپ کی. اگر ہم یہاں کریں نا یورپ میں، امریکہ میں، کہ یہ غیر مسلموں کے لیے یہ قانون ہے اور مسلمانوں کے لیے، آپ کی چیخیں آسمان تک جائیں گی. اور اپنے لیے بڑے مزے سے آپ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے اور قانون ہے، غیر مسلموں کے لیے اور قانون ہے. چلیے مزمل صاحب، کوئی اور آپ کے پاس موضوع ہو، دلیل ہو آپ کے پاس جس پہ بات ہو سکتی ہو تو وہ بتائیے، نہیں تو پھر نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. مزمل صاحب یہ کرنی ہے تو ایک اور کوئی سوال کرنی ہے. نہیں، یہ بس ان کے بارے میں میرے پاس تھا کوسچن آپ سے نا، جو آپ کہہ رہے تھے نا تضاد ہیں یہ والے، یہ میرے مائنڈ میں بھی یہ کھڑکتے ہیں ہمیشہ کہ جہنم نا. لیکن مجھے یہ آنسر تھوڑا سا نا سیٹسفائیڈ لگا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے نا دنیا میں، تو وہ دوبارہ بھی وہی حرکتیں کریں گے. ایسا ہے، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ پھر اس بچے کا حق کیوں چھین لیا؟ اس بچے کو جوان ہونے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے کیوں ہلاک کر دیا گیا؟ ایک بات. پھر دوسری بات، پہلی اٹمپٹ میں کیوں بھیجا؟ پھر دوسری بات، جب وہ بندہ سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے ایک موقع دو، میں نہیں کروں گا، تو ایک اور موقع کیوں نہیں دے رہا؟ اچھا مجھے پتا ہے میں تم یہ کرو گے. تو یہ تو دیکھیں پتا تو پہلے بھی تھا، آپ نے پہلے بھی چانس دیا، دوسرا نہیں دے رہے. اور پھر کئی لوگوں کو آپ نے پہلا چانس بھی نہیں دیا، جیسے وہ بچے کو میں بتا رہا ہوں، اس کو پہلا چانس بھی نہیں دیا آپ نے. ریکارنیشن والا کنسپٹ نہیں ہے نا اسلام میں. ایک ہی لائف ہے تو ایک ہی ٹیسٹ ہے، تو بار بار اللہ پیارے دوست ہے یا نہیں ہے. میں تو لاجک کہہ رہا ہوں کہ کیا محدود جتنے انسان گناہ کر لیں محدود ہوں گے کہ اچھا چلیں دوبارہ بھی آ جائے، دوبارہ بھی آ جائے. آپ کو فائنائٹ اور انفائنائٹ کا پتہ ہے؟ انفائنائٹ جو ہوتا ہے لامحدود ہوتا ہے. لامحدود صرف اور صرف خدا کی ذات ہے. انسان کے گناہ کبھی لامحدود ہو ہی نہیں سکتے. اگر گناہ آنے والا ٹائم بھی لامحدود، مطلب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. دیکھیں وہ لامحدود بھی ماضی سے نہیں ہے، وہ بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے ایبسولوٹ لامحدود، ایک ہوتا ہے فائنائٹ، ایک ریلیٹو لامحدود. وہ ریلیٹو لامحدود ہے کیونکہ وہ آگے تو ہمیشہ ہے لیکن پیچھے اس میں ہمیشہ نہیں ہے. ایبسولوٹ لامحدود صرف خدا کی ذات ہے. اور گناہ جتنے بھی ہوں، غلطیاں جتنی بھی ہوں، وہ محدود ہوں گی. اس کی لامحدود سزا نہیں ہو سکتی لاجیکلی. جی اور پھر یہ بس میں نے یہ ان دو کوسچن پہ آپ سے بات کرنی تھی. بہت شکریہ مزمل صاحب، بہت شکریہ. چلیں ٹھیک، شکریہ. شکریہ مزمل صاحب تشریف لانے کے لیے. جی سائمہ جی، اب آپ اپنی بات کیجیے، استقبال ہے آپ کا. پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ بائسٹ ہونا بند کر دیں. جب کوئی نان مسلم 2 گھنٹے تقریریں سناتا ہے تو آپ کی چون نہیں نکلتی، اور جب مسلمان کوئی بولتا ہے تو آپ میوٹ کر دیتے. ہم گالی نہیں دیتے، ہمیں میوٹ کیا جاتا ہے، ہماری بات نہیں سنی جاتی. ہمت ہے تو پھر بات پوری سن لیا کریں. آپ کی باری میں سنیں گے نا آپ کی بات. اگر آپ بیچ میں کسی چیز کے بیچ میں بولنے لگو گے تو آپ کی بات پہلے بھی نہیں سنتے. میں جتنی دفعہ اسٹریم میں آئی ہوں نہیں سنا، اور بعد میں آدھی عقل. وکٹم کارڈ کھیلنا اور رونا دھونا بند کیجیے، بات کیجیے. بیچ میں مت بولو. آج شریف بن کے بیٹھے ہو، بعد میں آدھی عقل اور گالیاں دے. آپ کو عادیکل آپ کے رسول نے بولا ہے، ہم نے نہیں بولا. اس کا ٹھیکرا ہمارے سر پہ پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ان کا مسئلہ ہے. ان کے رسول کی اور ان کے قرآن کی باتیں ان کے سامنے رکھو تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. ان کو آدھی عقل کہا، ان کو کہا نحوست اگر ہے تو عورت گھوڑے اور مکان میں ہے. ان کو کہا جائیداد میں ان کو آدھا حصہ دو. ان کی عقل آدھی ہے. آدھی عقل اگر میں ہوں اس کا مطلب کچھ اور ہے، تو آپ کی مدر بھی ابھی مسلم ہے مسٹر سمیر، وہ بھی ان کو بھی کہا ہے رسول اللہ نے. میں نے یہ نہیں کہا. دیکھیں ہمارے یہ نہیں کہا آپ کو. فرق کیا ہے سائمہ بی بی، ہمارے فرق یہ ہے ہمارے مطابق رسول نے بونگی ماری ہے، آپ یقین کرتی ہیں. ہمیں فرق ہی بہت اچھا ہے، ہم فرق میں ہی خوش ہیں. ہم آپ جیسے ہونا بھی نہیں چاہتے. نہ ہو کون کہہ رہا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے 2 گھنٹے بہت لمبی تقریر کی، شارٹ آنسر دیجیے گا. ہماری بیٹری ڈاؤن ہو گئی آئی پیڈ کی ویٹ کر کے. آپ کی بیٹری کبھی چارج رہتی ہے سائمہ؟ جب تو گالیاں دو گے تو پھر چارج کیسے ہوگی؟ نہیں. اچھا مطلب میں گالی دیتا ہوں، میری گالیوں سے آپ کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے. مطلب آپ کی بیٹری کا اور میری گالیوں کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے؟
हम बोलते जाते हैं, हम म्यूट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, और बाद में वो बात एडिट होके लग जाता है अगले दिन सुबह शॉर्ट्स में। ये तुम्हारे कारनामे हैं। जी चलेगा। सरमत जी, मेरा आपसे एक सवाल है, इस बहुत है, इलॉजिकल आपको आप बंदे अपना से तो सवाल मैं, रखिए। इस ब्रेनलेस आदमी से मेरा बात करने का भी दिल नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने जो आयत पुट की थी, कुछ देखो मेरे पैनल पे तो आप नहीं रह सकती इस तरह की बदतमीजी करके, ठीक है। एक तरफ तो आप ये कहती हो कि हम आपसे बदतमीजी करते हैं, जबकि हम नहीं करते, आप साबित नहीं कर सकती, और खुद आप आकर के हमारे साथ बदतमीजियां करते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे, और आप फिर उसके बाद सोचते हो कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, आपको मौका देंगे बात करने का। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं। सवाल दफा करने देते। नहीं, जाने दो इसको सरमत साहब, हम लोग इसको रोज देखते हैं। ये एक बदतमीज खातून है, एकदम वाहियात किस्म की। ये कभी बात नहीं करती, और कभी ये चार्ज लेके नहीं आती, कभी इसका फोन चार्ज नहीं होता, हम कभी इसके पास टाइम नहीं होता। हमेशा आएगी, मेरे पास 5 मिनट है, मुझे शॉर्ट में बात करनी है, अपना सवाल रखेगी, आपका जवाब सुनेगी नहीं, और बीच में ही जो है ना कंक्लूजन करेगी और भाग जाएगी। ये इसका काम है। आएगी, गाली गलौज करेगी, बदतमीजी करेगी, पर्सनल अटैक करेगी, यही काम करती है। देखो ना, इनके तो हदीसों में गालियां हैं, इनके तो कुरान में गालियां हैं। गैर मुस्लिमों के लिए गालियां इनके कुरान में है, तो ये क्यों ना दे? अच्छा, पिछले दिन तो बहुत अच्छे से बात किया था इन्होंने, आज अचानक से फिर से वो ईमान वाला ट्रैक्टर चालू क्यों हो गया? मैं समझ नहीं पाया। पिछले दिन तो बहुत अच्छा डिस्कशन करके गई है हमारे साथ। पता नहीं क्या कहते हैं। ईमान के नशे मतलब चढ़ जाता है क्या कभी कभी? दोस्त आज जो है ना प्रेजेंटेशन में अपनी आंखों से कॉन्ट्रडिक्शन देख लेना, अपने रसूल की इल्मी साइंस देख ली, कैसी कैसी साइंस है। दोज़ख बाहर सांस लेती है, गर्मी हो जाती है, दोज़ख अंदर सांस लेती है, सर्दी हो जाती है, और मक्खी के एक पर में शफा है, एक में बीमारी है, पत्थर भाग जाता है कपड़े लेके। तो ऐसी ऐसी बातें जब ये सुनेंगे तो पारा तो इनका चढ़ेगा ना। ये भाग गई, ये ज़ॉम्बी है, और ये ब्रेन डेड सेल है इसके, ये भाग गई है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो कुछ भी है वो मोहम्मद की दिल की बातें हैं, वो फेक आईडी है। उसको कोई शख्स बुरा लगता था, उसके मुतालिक उसने ये बात कही, चाहे वो उसके जमाने में था, चाहे उससे वो पीछे था। ये सवाल सारी बनता ही नहीं बातें- ना सरमत साहब, देखिए एक्चुअली बात ये है, लॉजिकली ये सवाल नहीं बनता है कि उसके पीछे का वाकया क्या है, किसके जमाने का वाकया है, किसने कहा है, क्योंकि ये बातें जो मुसलमानों तक पहुंच रही है ये कुरान बता रहा है, ये कुरान में बयान की गई है। लिहाजा ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है टुवर्ड्स इनके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके अकीदे के मुताबिक ये अल्लाह कह रहा है नबी को, ताकि नबी सारी दुनिया तक ये पहुंचाए, और फिर नबी से ये इन मुसलमानों तक पहुंचाए। जब उसके अंदर अल्लाह ये कहता है कि किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, मेन आर्गुमेंट तो ये है। हाँ, तो फिर वहां पर सरमत साहब अल्लाह तो कोई शराइत नहीं लगाता ना कि किस शक्ल सूरत में मत पुकारो, या किस नौयत में मत पुकारो, या किस रीजनिंग में मत पुकारो। अल्लाह जनरली कहता है कि किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो, यानी कि किसी भी सिचुएशन में आप नहीं पुकार सकते। और फिर अगर वो खुद अल्लाह पुकारता है किसी को, तो फिर ये आते हैं, कहते हैं कॉन्टेक्स्ट देखो, किसके बारे में क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, किसे कहा गया है, किसने कहा है। ओ भाई, या आपके अल्लाह ने ये सारे के सारे हुक्म, ये सारी की सारी शराइत लगाई ही नहीं है कि किस हालत में और किस नौयत में कह सकते हैं और किस में नहीं कह सकते। उसने जनरल हुक्म दिया कि मत कहो। आपका अल्लाह जनरल हुक्म देता है कि उनके झूठे माबूदों को बुरा मत कहो, वरना वो पलट करके तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेंगे। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो शराइत नहीं लगाता, हुक्म नहीं लगाता, और फिर खुद दूसरे के माबूदों को गालियां देता है, दूसरे के माबूदों को जहन्नम में डालने की धमकी देता है। तो ये तुम्हारे अल्लाह का डबल स्टैंडर्ड है। इस पर ये जलेबी जो तुम बना रही हो ना, इसकी जरूरत नहीं है बनाने की, ये बनती नहीं है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से देखो आपको समझ में आ गया होगा सरमत साहब कि इस मोहतरमा क्या लेवल है एक्चुअली और क्या नॉलेज है। आपने पहले किया था तो मैंने कहा चले सवाल कर देखें। मेरा बुनियादी सवाल यही था कि कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ आपके कुरान में है कि दूसरों के बुरे नाम ना रखो, और तरह तरह के दूसरे बुरे नाम रख रहे हो। अब ये कि ये कुत्ता किसको कहा गया, क्यों कहा गया, तो भाई हम तक जो पहुंचा है ये कुरान से पहुंचा है ना। और कुरान जो है वो मोहम्मद की दिल की कहानी है, दिमाग की क्रिएशन है, और चाहे वो अल्लाह की तरफ अगर मंसूब करें तो वो उसकी फेक आईडी है। 2 मिनट होगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं। पहले जो एक क्रिश्चियन और जू को कुछ अल्लाह बुरा बोलता है, ये कौन सा उसमें आप बताएं। हेलो, आपको हवाले दिए थे ना
हाँ हाँ कि मैं भूल गया वो हाँ, कुछ अल्लाह बोलता है क्रिश्चियन को बुरा बोलता है। जो गनीम का लफ्ज आया है, हाँ जो सुअर का लफ्ज आया है, बंदर का लफ्ज आया है, बदतरीन मखलूक का जिक्र आया। बदतरीन मखलूक का जिक्र तो इन जनरल आया है कि वो नॉन मुस्लिम के लिए आया, वो बदतरीन मखलूक है। खैर ठीक है। देखो देखो अल्लाह क्या बोलता है, पहले तो उनको ये बोलता है अहले किताब, यानी कि वो लोग है ये जो अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल हुए उनको, ये जो सो ऑनरी वो है। फिर दूसरा ये बोलता है अल्लाह कि तुम क्रिश्चियनों से जू से शादी कर सकते हो अगर वो बदतरीन मखलूक होती है, तो अल्लाह को बोलता था कि तुम उनसे शादी करो, ये तो बदतरीन मखलूक है। देखिए, सुनिए तो सही, सुनिए एक तरफ कहता है शादी कर लो, एक तरफ कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। नहीं राजदार नहीं हो सकते हैं दोस्त नहीं, अरे हम शादी कर सकते हैं उनसे, तो दोस्ती कैसा नहीं कर सकते। शादी, देखिए शादी भी क्या है, औरत ले सकते हो, वो कुछ भी हो, कोई हाँ, भी मजहब। देखिए मैं सैयद साहब जरा सा सुन लें, आप आपकी बात आगे जरा सा सुन लें। मुस्लिम माशरे में औरत की हैसियत क्या है? हदीस है कि औरत को और जानवर को घर लाने की एक ही दुआ है। तो औरत जब आप घर लाते हैं तो उस पर आप अपना दीन मुसल्लत कर देते हैं, उसके बच्चों पे अपना दीन मुसल्लत कर देते हैं। इसीलिए शादियों की इजाजत है अहले किताब के साथ कि, और वो भी क्या इजाजत है, ये इजाजत नहीं है कि एक मुसलमान लड़की जो है एक गैर मुस्लिम मर्द से शादी करे, इसकी इजाजत नहीं है। हदीसों में वाज़ेह ममानत उसकी है। जो इजाजत भी है शादी की वो उनके लिए है कि उनकी औरतों में शादियां कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो कि मुस्लिम माशरे में मर्द की अथॉरिटी है, वो उसको दबा के रखेगा, उस पर भी अपना दीन मुसल्लत कर देगा, उसके बच्चों पे भी। लेकिन जहां तक अमूमी दोस्ती का ताल्लुक है, देखिए अब ये बात तो ये हो रही है मेरे दोस्त कि जनीम कहा गया या नहीं कहा गया, कुत्ता कहा गया या नहीं कहा गया, बदतरीन मखलूक कहा गया, देखिए किसको कहा गया ये भी रिस्पेक्टिव है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कुरान कहता है कि दूसरों के ऐसे नाम ना रखो जो उनको बुरे लगे। खुद वो किसी को, देखिए ये रिस्पेक्टिव है किसको कह रहा है, जनीम कह रहा है या नहीं कह रहा, कुत्ता कह रहा है या नहीं कह रहा, सुअर कह रहा है या नहीं कह रहा, बदतरीन मखलूक कह रहा है या नहीं कह रहा, इसका जवाब देते हैं बस। क्यों कह रहा है, किसको कह रहा है, ये तफसील में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए, अगर वो बदतरीन मखलूक है तो अल्लाह हमको क्यों बोलता है तुम उनसे शादी कर सकते हैं, तुम उनका खाना खा सकते हैं। सुनिए सुनिए, आप खाली बकवास कर रहे हैं आप। भाई बकवास बात है, ये सब उल्टे सीधे लैंग्वेज यूज करोगे तो भाई सीधा किक आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। एक बंदा बात कर रहा है, विथ रेफरेंस बात कर रहा है। ये दावा करो कि कुरान में लफ्ज नहीं है, मैं दिखा दूं आपको, और पहले भी दिखाया था। ये लफ्ज है कुरान में जनीम का या नहीं है, सुअर का लफ्ज है या नहीं है, कुत्ते का लफ्ज है या नहीं है, ये बताएं सही सब पहले सब ये बताएं। अगर बदतरीन मखलूक है तो अल्लाह हमको क्यों बोलता है उनसे शादी करो। आप एक जवाब तो दे दे, बदतरीन मखलूक का, कुत्ते का, सुअर का, जनीम का लफ्ज है मुखालिफिन के लिए कुरान में या नहीं है? देखो वो जो कुत्ता तो नहीं है, ये तुम ये नई चीज निकाले। हाँ एक आयत में है जो यहूदियों को जो ऐसा अल्लाह बोलता है कि उनमें से अल्लाह 12 ट्राइब बनाए थे, 12 लीडर दिए, और उनमें से एक नाफरमान निकले, तो अल्लाह बोलता है मैं उनको उन फिरके को, उन कबीले को मैंने बंदर और सुअर बनाया हूँ। यह है, उसमें से 12 यहूदियों के खिलाफ खलीफों में ट्राइब में से एक ट्राइब जो सो नाफरमान था, तो अल्लाह बोलता मैं उनको जो है सो बंदर और सुअर बना। और अल्लाह क्या बोलता मालूम है यहूदियों के बारे में, मैंने तुमको चुना हूँ, सारे मखलूक में से तुमको चुना हूँ, फेवर दिया हूँ। ये अल्लाह बोलता है कुरान में। तुम क्या है एक तरीके से लेकर बकाया को नजरअंदाज कर रहे। अल्लाह ने क्रिश्चियन जूस को क्रिटिसाइज भी किया है और जो सो उनको कमाई भी दिया है। एक जगह अल्लाह बोलता तुमसे जो करीब से तुमको जो है, ये जो है सो क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन तुमसे करीब है ये, और जो सो यहूद और जो है सो मुशरिक ये तुमसे नफरत करते, यानी कोई दूर है, ये तुमसे बुराई का ख्याल करते हैं ये तुम पर। मगर जो सो क्रिश्चियन है इनमें से नहीं, ये आप गलत ट्रांसलेशन बता रहे हो, ये आप अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन कर रहे हो। 98.6 खोले जरा, इनसे कहते हैं पढ़ के सुनाए। 98.6 खोले जरा जी। 98.6
मैं 98.6 खोल दूंगा, लेकिन ये जो कोट कर रहे हैं ना सरमद साहब, अभी जिस आयत को ये पढ़ रहे हैं 5 की 82 है वो, ये उसको भी गलत पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं ज़नीम का लफ्ज़ दिखाना चाह रहा हूँ। 98.6 खोले जरा, ये खुद पढ़े 98.6 खोले। और जगह भी आ जाएंगे, पहले 98.6 खोले, उसमें ज़नीम का लफ्ज़ है कुरान में या नहीं है? ये सैयद साहब जरा पढ़े इस आयत को। क्या बोले हैं उसमें? 98 की 6 खोलें और देखें उसमें ज़नीम का लफ्ज़ है कि नहीं है। ज़नीम का लफ्ज़ सूरह अल कलाम में है। वो नहीं, सॉरी, शरुल बरिया। मैं भी वो शरीर बरिया कौन होते हैं मैं आपको बता। सुनिए, शरीर बरिया कौन होते हैं कुरान में मुझे मालूम है। ये जो है सो अल्लाह जो उनको जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करता, ये जो है सो जानवरों से बदतर है। जानवरों से आपकी बात आ गई। आप अगर देखें, कुरान कहता है कि मोहम्मद अनपढ़ नबी है, तो अब क्या मैं उसको शरीर बढ़िया कह सकता हूँ? जो अनपढ़ अकल इस्तेमाल नहीं करता, अनपढ़ तो वही होता है। नहीं, हम भी कह सकते हैं ना, हमारी जो है तहजीब गवारा नहीं करती कि दूसरों को शरुल बरिया कहें, दूसरों को अबू जहल कहें। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि खुदा एक जगह कहता है दूसरों के नाम ना रखो, दूसरी जगह वो शरुल बरिया। अब आप कह रहे हैं शरुल बरिया उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, तो भाई किसी को कहते हैं, क्यों इंसानों के नाम तुम शरुल बरिया रखते हो? ठीक है, वो तुम्हारा है। तुम इंसानों के नाम क्यों क्या मुझे हक नहीं है फिर? क्या अगर मैं किसी को शरुल बरिया समझो तो उसको शरुल बरिया कह दूं? अच्छा भाई, एक मिनट दो मेरे को, तुम वो मत करो, जज्बात में मत आ जाओ, तुम समझे ना। ये जो है अल्लाह किसको बोल रहा है? ये शरुल बरिया वर्स देन वर्स क्रीचर, जो है सो मखलूक वर्स क्रीचर है। ये किससे वर्स क्रीचर है? ये कौन है? ये जो है सो एथियस्ट होते हैं, जो अकल इस्तेमाल नहीं। अरे चाचा, आयत पढ़ो पहले पूरी। मैं ये कहना नहीं करूंगा। एक मिनट देखें, मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर आपकी राय में एथिस्ट शरुल बरिया है, तो मेरी नजर में वो शरुल बरिया हैं जिन्होंने अबुल हकम को अबू जहल कहा, वो शरुल बरिया हैं। ठीक है, वो ठीक है, तुम्हारा ख्याल है, हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा तो ये है कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक जगह कहता है दूसरों के नाम ना रखो, फिर दूसरी जगह वो कहता है ये शरुल बरिया है। सिर्फ इसका जवाब है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? अरे भाई, अगर वो क्रिश्चियन जू शरुल बरिया होते तो अल्लाह उनको हुक्म ही नहीं देता। अरे कोई भी हो, वो क्रिश्चियन हो, जूस हो, एथिस्ट हो, लेकिन क्लियरली अल्लाह क्लियरली बोल रहा है कि किसी को भी उस गंदे नाम मत दो। नहीं, तो उस किसी को अल्लाह दे सकता है। अल्लाह जो है सो एथियस्ट को बुरा बोल सकता है। तो मोहम्मद की फेक आईडी है ना, आपके लिए अल्लाह अलग चीज है, हमारे लिए तुम्हारे को पसंद नहीं आया तो हम वी डोंट केयर। अरे एक सेकंड फिर से ये अच्छा अहमद साहब, मुझे बस एक सेकंड दीजिए, सॉरी, मैं फिर से वो डिस्कशन इनको याद दिलाता हूँ, ये शायद भूल जाता है। अभी ये बोल रहे अल्लाह दे सकता है, जब फंस गए। अल्लाह क्लियरली बोल रहा है कि किसी को भी, देखिए फिलोसफी में जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इस्लामी चीजों जैसा नहीं होता है। जो वर्ड्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होता है, जैसे कि सब कुछ, उसके बाद हो गया हर कोई। इसी जैसा एक वर्ड होता है, किसी को भी मत बोलो। तो इस किसी को भी इस पैराग्राफ से एक बात और है, ये कह रहे हैं ना अल्लाह कह सकता है, फिर मोहम्मद ने जो अबू जहल का नाम, अबुल हकम का नाम अबू जहल रखा, वो क्या किया? अरे वो जानबूझ के तो ये पॉइंट पे जाना चाह रहा है, अलग पॉइंट पे। मतलब मैं जो बोल रहा था कि ये जो वर्ड्स होते हैं अहमद साहब, सैयद साहब, सिद्धार्थ भाई, ये जो वर्ड्स होते हैं कि किसी को भी, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल वर्ड है। जब एक बंदा सुनिए सैयद साहब, सुनिए, नहीं पता सुनिए, किसी को भी अगर ये बोल रहा है ना, तो उसमें सब कोई इंक्लूडेड हो जाता है। वो वहां पे एथिस्ट भी इंक्लूडेड है, वहां पे क्रिश्चियन भी इंक्लूडेड है, वहां पे ज्यूज भी इंक्लूडेड है, वहां पे हिंदूज भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग वहां पे मुसलमान भी इंक्लूडेड है। तो अगर किसी को भी मत बोलो ये बोल रहा है, तो ऑलरेडी सब को इंक्लूडेड हो जाता है वहां पे। अजय भाई, अल्लाह ने जो एथियस्ट होते हैं उसको ये बोला है कि वो जानवरों से बदतर है, क्योंकि वो अकल इस्तेमाल नहीं करते। ये साहब एक मिनट, मेरे नजदीक एथिस्ट मुसलमानों से बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान। ठीक है, हम भाई ठीक है, सारी दुनिया में बम ब्लास्ट आप लोग करें, ठीक है भाई, हमको मजा आता है बम ब्लास्ट करने में, हमको मजा आता है। सबसे अच्छे आप बने। बम ब्लास्ट करने में हमको मजा आता है भाई, हम इसलिए करते हैं।
वो तुम्हारे को क्या करने का है, हम क्यों करते हैं। अच्छा मैं ये दूसरा कह रहा हूँ कि दूसरा ईमान दूसरा दूसरे जाने नबी से दीजिए, कहते दूसरों को है। नहीं हो ठीक है भाई, तुमको तकलीफ होगी ना, हमको थोड़ी है, हम तो मजे लेते हैं बमबारी करके, समझे ना, तो हमको कुछ वो नहीं है ज्यादा, देखिए, हम आपके तुम्हारी पास फिक्र नहीं करते। कोई इल्मी गुफ्तगू करनी है तो करें, अगर हाँ आपने ठीक ये है ठीक है, दूसरा जो है सो हाँ। दूसरा जो है सो ये कोई इल्मी सब बातें हैं ही नहीं जो आप लोग कर रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ठीक, ये आपसे आ रहा है। हम भी बहुत अफसोस कर रहे हैं आपके लिए। चलिए दूसरा सवाल ये है कि वो अरे एक टेररिस्ट को हमारा अफसोस करने की जरूरत नहीं है अहमद साहब, यू आर टॉकिंग टू ए मतलब टेररिस्ट, समझ रहे हो? हाँ ये ठीक जो है, इस्लामिक ठीक है। टेररिस्ट है, उन टेररिस्ट तू से आप बात अमन नहीं फैला करें। रहा भाई, तू अमन फैला रहा है इंडिया में हिंदू मुसलमान के बीच में अमन फैलाता है तू भाई समझे तू ना? खुद बम बांध के फटने की बात हाँ, करता है, तो सुन टेररिस्ट, भाई, ठीक है, वर्ल्ड क्लास टेररिस्ट हो हाँ, मुसलमान तू तुम, ठीक है। इंडिया हिंदी मुसलमान के बीच में अमन हम तो फैलाता तुम्हारे है तू। जैसे टेररिस्टों को एक्सपोज करते हैं ना लाइव में आके। बहुत शरीफ है तू। चल हाँ चल। डेफिनेटली, तुम जैसे टेररिस्टों से बहुत शरीफ हो, कम से लेकिन कम बात बंद बांध ये के है फटते नहीं कहीं बात पे। ये है जब ये अपने कुरान को और मोहम्मद को डिफेंड नहीं कर सकते तो अच्छा दाएं भाई बाएं चलो, जिंदगी बनाते भागते हैं बस। अच्छा चलो, वो जुल्करनैन का जो बोल रहे थे आप, जुल्करनैन पे आते हैं। चचा पहले आपकी एक बोंगी जो आपने एक रायता लपेटा है ना, सॉरी आपने जो रायता फैलाया उसको जरा मैं समेट दूं, तो आपकी जुल्करनैन की बोंगी पे भी हम आएंगे। असल में आपने कहा कि ये आयत जो है वो एथिस्टों के बारे में बात कर रही है। सामने से अपने अल्लाह के दिफा में कुरान की किसी आयत का मतलब बदल देना, उसके अल्फाज बदल देना और उसके अंदर अपने अल्फाज डालना, चाहे उसके लिए आपकी नीयत यही क्यों ना हो कि हम अल्लाह के कलाम का दिफा कर रहे हैं, लेकिन सैयद साहब कुरान की दूसरी आयत के मुताबिक आप सर नारे जहन्नम के हकदार तो बन जाते हैं। आपने यहाँ पर वही चीज की है, आपने कहा ये एथिस्ट के लिए है। इधर कहाँ लिखा है एथिस्ट के लिए? आप जब आयत को पढ़ेंगे, सर एक सेकंड सर एक सेकंड, जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो इस आयत क्या कह रही है? ये कह रही है इन्नल लज़ीना कफरू, इन्नल लज़ीना कफरू, जिन्होंने भी कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, एक मिनट, या तो आप पढ़ लो या तो मुझे पढ़ने दो सैयद साहब। ओके नहीं, अगर आपको बीच में बोलना है तो फिर मैं खामोश हो जाता हूं, आप अरबी की इबारत पढ़ो और आप ट्रांसलेट करो। ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ने दें। ठीक है। शुक्रिया, म्यूट कर लें, आपकी तस्वीर को भी आ रहा है। यह आयत कहती है इन्नल लज़ीना कफरू, ये वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वल मुशरिकीना, और मुशरिकीन, फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, ये जाएंगे जहन्नम के अंदर। कौन? जिन्होंने कुफ्र किया, किसमें से? अहले किताब में से और मुशरिकीन, यानी कि अहले किताब के काफिर और मुशरिक, क्योंकि अहले किताब में सारे लोग काफिर नहीं है। जिन्होंने अपने वक्त के नबियों की पैरोकारी की है वो लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र किया और मुशरिकीन, उनके अलग, क्योंकि वाह का लफ्ज इस्तेमाल आया है, वाह और जमा का सीगा है, और वल मुशरिकीन फी नारी जहन्नम खालिदीना फीहा, ये सब जहन्नम में जाएंगे। उलाइका हुम शर्रुल बरिया, और ये बदतरीन मखलूक हैं। जबकि अगली आयत 7 कहती है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाए और अमले स्वालिहात यानी कि नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, और ये बेहतरीन कौम है, खैरुल बरिया है। तो चचा चाहे जितनी जगह भी बना लो और कुरान के चाहे जितने मायने अपने मुताबिक बदल लो, उससे आपके इस्लाम का मैसेज नहीं बदलेगा। एक्सपोज तो वो जरूर होगा, साथ ही साथ आप खुद को भी एक्सपोज करते हैं ये झूठ मुंह पर बोलकर। बिल्कुल। अच्छा मैं समझा है, तो ये इस आयत के मतलब क्या है? ये जो काफिरिन है, जो काफिरिन है उनमें से जो अहले किताब में से है, जो कुफ्र करते हैं, अहले किताब में से जो लोग कुफ्र करते हैं यानी कि खुदा को नहीं मानते हैं, ये जो है सो और जो है सो मुशरिक में से जो कुफ्र करते हैं, गॉड का कुफ्र करते हैं यानी कि नहीं मानते, मुशरिक में से ये लोग जो है, अरे मुशरिक में से काफिर कैसे निकल, मतलब इतने बड़े बेवकूफ किस्म के आदमी वाकई हो या बनने की कोशिश कर रहा हो?
अरे मुशरिकीन अपने आप में एक टर्म है, काफिरून अपने आप में एक टर्म है, काफिर अलग है, मुशरिक अलग है। एक आदमी मुशरिक और काफिर दोनों हो सकता है, एक आदमी मुशरिक और काफिर दोनों हो सकता है, लेकिन मुशरिक अलग टर्म है, काफिर अलग टर्म है। मुशरिकीन में से काफिर कुफ्र कहां से निकाल रहे हो? यानी कि शिरक में भी कुफ्र होता है, और शिरक तो शिरक है मेरे भाई। अल्लाह के सिवा तुमने किसी और की इबादत की, तुमने शिरक किया, अब उसमें से कौन सा कुफ्र निकालना है? यानी कि अब अल्लाह की इबादत कर ली तो कुफ्र हो गया शिरक में। मतलब कितनी बड़ी जलेबी पका रहे हो, और शर्म भी नहीं आती इतना मुंह पे झूठ बोलते हुए आपको सैयद साहब। काफिर का मतलब है जो खुदा को डिनाई करता। ठीक है, और मुशरिक का मतलब क्या है? मुशरिक जो मूर्ति पूजा करता है। तो बस, तो फिर दो अलग अलग टर्म हो गई ना भाई, एक हो गया इनकारी, एक हो गया शिरक करने वाला, तो वो दोनों कहां जाएंगे? इनकारी करने वाले तो जहन्नुम में जाएंगे। मुशरिक में तो आप तो कह रहे थे एथीस्ट के बारे, आप तो कह रहे थे एथीस्ट के बारे में, आप कहते हो मूर्ति पूजा करने वाले जन्नत में, हिंदू जो है जो मूर्ति पूजा करते हैं वो जन्नत में चले जाएंगे अगर वो खुदा को मानते हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि मुशरिक जो है वो जहन्नम में जा रहे हैं। मतलब आप तो खुद की टांग खुद ही तोड़ दे रहे हो। मुशरिक जो है सो जहन्नुम नहीं जाएंगे, उनमें से जो काफिर है वो जहन्नुम में जाएंगे। पलट गया, देख लो सरमत साहब, विद इन अ सेकंड ये आदमी पलट गया। आप कह रहे हो मुशरिक जहन्नम में नहीं जाएंगे, इसका नया खुद का कोई इस्लाम है। और आपको मैं बताऊं मजेदार बात ये, सरमत साहब इसने अपना खुद का कोई नया इस्लाम का इंतखाब किया हुआ है, और इसने अखज किया हुआ है, चुना हुआ है, बनाया हुआ है, और मुसलमान ही इसके इस्लाम को नहीं मानते। नहीं, आजकल तो बहुत से ब्रांड निकल आए ना, एक से एक वैसे इकबाल साहब के प्रोग्राम में आते हैं कनाडा से, वो कहते हैं 1400 साल में ये मियां बीवी हम दो पहले लोग हैं जो कुरान समझे, आज तक कोई समझा ही नहीं है। एग्जैक्टली आप देखिए कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है, आपने भी आज के डिस्कशन में वो आयत पेश की थी कि और जिनकी ये अल्लाह के सिवा इबादत किया करते हैं, अल्लाह इनको और इनके माबूदों को उठाकर जहन्नम में डाल देगा। तो वो भी तो शिरक ही कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी और की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह उनको जहन्नम में डाल रहा है। ये भाई साहब कहते हैं नहीं अल्लाह मुशरिकों को जहन्नम में थोड़ा ना डालेगा। नहीं, मतलब इनका अपना खुद का इस्लाम है जो अल्लाह से भी ऊपर। नहीं, ये कुरान का इस्लाम है। चमोन यार सैयद साहब, आप जैसे आदमी से तो कुरान सीखने की जरूरत नहीं है, और मुझे नहीं पता कि किन लोगों के लिए आप किताबें लिखते हो और कौन वो लोग हैं जो आपकी किताबें पढ़ते भी हैं। कमोन यार सैयद साहब, आपके आखिरी वक्त चल रहा है, कबर में आपके पांव लटके हुए हैं, उम्र आपकी इतनी ज्यादा हो गई, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये जो है ना, ये लफ्फाजी और ये बयानबाजी और ये हरकतें छोड़ करके इंसानों की जिंदगी जियो यार, इंसान बनो भाई। क्या ड्रामेबाजी करते हो सैयद चाचा, आप खुद का अपना मजाक खुद बनवाने आप आ जाते हो। इनकी मजबूरी है, ये अनडिफेंडेबल चीज को जब डिफेंड करेंगे तो ये इनके फिर ये रंग सामने आएंगे। अच्छा भाई, वो चलिए आप वो उसके सन के ऊपर मडी स्प्रिंग में सन है जुल्करनैन का। नहीं, आपसे सैयद साहब, आपसे कुरान के ऊपर बात नहीं हो सकती जब तक आप ये ना कह दें, सुनिए, तब तक जब तक आप ये ना कह दें कि हमारे तमाम तर स्कॉलर्स ने जो कि पहले गुजरे हैं, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन ली है और उन्होंने जो मीनिंग लिया है, मैं उसको उस पर अग्री करता हूं। जब तक आप ये नहीं करते तब तक आपसे कुरान पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर न्यू वर्जन ऑफ कुरान आपसे जानने नहीं बैठे। हाँ, एक बात सिर्फ मैं कहूंगा सैयद साहब से, सिर्फ एक बात कहूंगा सैयद साहब, एक बात सिर्फ कि जो वो जुल्करनैन वाली आयत है जो कुरान की, उसमें जब प्रॉफिट ने, सही मुस्लिम में भी है, अबू दाऊद में भी है, कुरान में से कि जब आप प्रॉफिट से ज्यादा जानते हैं, जब प्रॉफिट ने ये कह दिया कि ये आयत ये कह रही है कि सूरज वाकईतन दलदल में कीचड़ में जाके गरूब होता है, फिर सारी रात अल्लाह से दुआ करता है, कहता इजाजत मांगता है, इजाजत मिलती है तो मशरिक से जाके निकलता है। तो ये प्रॉफिट की जब तशरीह मौजूद है, कुरान का तर्जुमा मौजूद है, आप कौन हैं जिनसे हम समझे कि इसका आयत का मतलब कि आप हैं कौन, प्रॉफिट से ज्यादा जानते हैं? हाँ ठीक है, मैं आपको एक सवाल करता हूँ। देखो, क्या मुसलमान जो है सो अल्लाह को एक मानते हैं? कुरान की जैसा बोला है अल्लाह एक है, तो मुसलमान मानते हैं अल्लाह एक है, और मुसलमान ये मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है सो अल्लाह के प्रॉफिट है, ये भी मानते हैं। अब सवाल ये रहा, जुल्करनैन जो है सो जो ये बोल रहे हैं कि वो सन जो है, सूरज जो है सो एक पानी के मड में, पानी के उसमें तैर रहा है। क्या मुसलमान ये बोलते हैं कि सूरज जो है सो पानी के मड में जो है सो तीरता है? सैयद साहब, बात यहाँ हो रही है मुसलमान क्या कहते हैं इसकी बात नहीं हो रही। नहीं, अरे भाई मुसलमान कुरान बोल, आप बोल रहे ना कुरान बोल रही है। जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। बात ये नहीं हो रही कि मुसलमान क्या कहते हैं, बात ये हो रही है कुरान क्या कहता है और प्रॉफिट उसकी क्या तफसीर कर रहा है।
कुरान क्या कह रहा है और प्रॉफिट उसकी क्या तफसीर कर रहे हैं। कुरान भी ये कह रहा है कि एक गैर मामूली इंसान ने गैर मामूली सफर इख्तियार किया, ऐसी जगह पहुंचा जहां समुंदर को एक कीचड़ के नदी में डूबते पाया, और नबी उसको वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि वाक़ियतन सूरज जाता है, एक दलदल में जाके ग़ुरूब होता है, सारी रात इजाज़त मांगता है, जब इजाज़त मिलती है तो फिर मशरिक में जाके निकलता है। प्रॉफिट की तशरीह मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है। मुसलमान क्या कहते हैं, मेरे लिए मैं इस वक्त बैठा हूँ कुरान और प्रॉफिट को गलत साबित करने, लोगों को गलत साबित करने मैं नहीं बैठा हुआ। हाँ, तो अब जब प्रॉफिट बोलते हैं कि सूरज जो है सो मड में तैरता है, और कुरान भी आपके हिसाब, अरे भाई आप खामोश बैठिए ना एक मिनट। तो अल्लाह भी बोल रहा है कि जो सो सूरज जो है सो पानी में, मड के पानी में गिर रहा है। तो ये अब तो मुसलमान जो सो जब कुरान की ये आयत आई थी तो वो जो बोले फेगन तो सुने होंगे ये ऐसा कि भाई अल्लाह बता रहा है इनको जो सूरज जो है सो पानी के मड में तैरता है, वो डूब जाता है। हाँ, तो मुसलमानों ने उस पर सवाल नहीं उठाया कि भाई देखो ये कैसी किताब है, खुदा बोल रहा है सूरज जो है सो पानी के मड में तैर रहा है। देखिए सैयद साहब, आप गलत जा रहे हैं। हम इस वक्त ये बहस करने नहीं बैठे हैं कि सैयद साहब क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, गामदी क्या कहते हैं, शिया क्या कहते हैं, बरेलवी क्या कहते हैं, प्रॉफिट के जमाने में लोग, हम कह रहे हैं अल्लाह और प्रॉफिट जो कह रहा है वो गलत है, हम सिर्फ उस पर तबसरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप गलत है, अब भाई आप गलत हो सकते, देखें हाँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी, लेकिन कुरान गलत है या नहीं, प्रॉफिट के कौल गलत है या नहीं, हम उस पर बहस करें, उसको आप साबित करें कि वो अल्फाज दुरुस्त हैं। अगर सुने मेरी बात, कुरान के अल्फाज भी गलत हैं, प्रॉफिट की तशरीह भी गलत है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब आप ये कि लोग ये क्यों नहीं कहते थे, वो क्यों नहीं कहते थे, लोगों ने ये कहा, आप एजम्पशन पे बात कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे कि अगर एक अरब मुसलमान है तो एक अरब मुसलमान क्या क्या कहते हैं उस पर डिस्कस करें। हम बैठे उसका जो था कि कुरान और सुन्ना, does it make sense? It doesn't make sense. हम कुरान पे और सुन्ना पे बात करने आए हैं, हम लोगों की आरा पे बात करने नहीं आए। सुनिए, देखिए अगर ऐसा सही होता कि कुरान भी बोलती है कि मड में रहता है सूरज, और हदीस भी प्रॉफिट मोहम्मद भी बोल रहे हैं कि सूरज जो है सो मड में तैर रहा है, तो फिर ये मुसलमानों को क्या हो गया कि वो जो है सो प्रॉफिट को भी इनकार कर रहा है, अल्लाह की कुरान को भी इनकार कर रहा है। ये आयत आपके सामने आ गई है, इसलिए कर रहे हैं कि उनको शर्म आती है। जब शर्म आती है फिर जलेबियां बनाते हैं बैठ के कि इससे ये मुराद है, इससे ये मुराद है। या आप देखें कुरान के अल्फाज देखें, अरबी में भी देखें और उसका उर्दू तर्जुमा भी देखें, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है यहाँ तक कि वो सूरज ग़ुरूब होने की जगह पहुंचा, और इसका बैकग्राउंड ये है कि वो गैर मामूली इंसान था, गैर मामूली उसको ताकतें हासिल थी, गैर मामूली सामान्य सफर हासिल थे, फिर वो एक सफर करता है, फिर वो एक जगह पहुंचता है। कुरान भी ये कह रहा है और प्रॉफिट की हदीस भी हमने बता दी। कुरान और प्रॉफिट की हदीस होते हुए मैं आपकी और अलिफ बे पे गाजर मूली की क्यों मानूं? अच्छा देखिए, मैं समझाता हूँ। ये देखो बाज़ वक़्त क्या होता है, ये जो सूरज होता है ना, जब हम समंदर के पास ठहरेंगे तो ऐसा देखेंगे कि आप रसूलुल्लाह की हदीस को सही मानते हैं उसको या गलत मानते हैं, पहले तो ये क्लियर करें आप। ये तो हमारी पॉडकास्ट में बात हो चुकी, जब हम खड़े होंगे हमें ऐसा ही नजर आएगा, लेकिन कुरान ये नहीं कह रहा। कुरान कह रहा है कि वो जुल्करनैन आम आदमी नहीं था, वो सैयद साहब नहीं थे, वो सरमद साहब नहीं थे, वो समीर साहब नहीं थे, वो एक गैर मामूली इंसान था, गैर मामूली ताकतें उसके पास थी, गैर मामूली सफर करता है, ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ सूरज ग़ुरूब हो रहा है, फिर वो सूरज को कीचड़ में डूबते देखता है, पाता है। और प्रॉफिट वाज़े तौर पे कहते हैं इस कुरान की आयत का मतलब ये है कि सूरज वाक़तन कीचड़ में जाके ग़ुरूब होता है, सारी रात खुदा से इजाजत मांगता है, इजाजत मिलती है तो मशरिक से तुलू होता है। प्रॉफिट की हदीस, कुरान के अल्फाज ये गलत हैं। आप इसके जलेबी बना के नए मतलब निकालेंगे, मेरे लिए उसकी कोई, क्योंकि देखें यार, मैं आपके दीन को नहीं डिनाई कर रहा, मैं आपको डिनाई करने नहीं बैठा, मैं बता रहा हूँ कुरान गलत है, हदीस गलत है। खैर वो आपके हिसाब से तो कुरान गलत ही है, वो हमको उतना वो नहीं है, तकलीफ नहीं हो रही, मगर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो है अल्लाह ये बता रहा है कि जुल्करनैन ऐसे जगह गया जहां पर उसको ये, अरे चचा सुनो ना, नहीं कुरान पे जाना ही नहीं, आपको अभी कुरान पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो
बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि हम तो मानते कुरान गलत है, चलो आप तो सही मानते हो ना, आप हमें ये बता दो कि आप रसूल अल्लाह की हदीस को, अबू दाऊद की जो हदीस है 4002, आप उसको सही मानते हो या गलत मानते हो? आपसे सवाल ये है, पहले आप उसका जवाब दें। हदीस इंसान के लिखे हुए है, मैं नहीं मानता हदीस। आप उसको सही मानते हो गलत मानते हो? गलत मानता हूँ, झूठ है बोलता हूँ बस मगर मैं हदीसों को रिजेक्ट नहीं करता। ये हो गया प्रॉफिट की तशरीह गलत है। मैं हदीसों को रिजेक्ट नहीं करता, अच्छी हदीस रही तो मैं ले लेता हूँ, और नहीं, जो क्यों ले लेते हैं? मतलब अपने मर्जी से जो मन किया ले लिया, जो मन किया छोड़ दिया। हाँ? इसका मतलब जहाँ शर्मिंदगी हुई, जो चीज साइंस के खिलाफ होगी उसको छोड़ दिया, जो चीज नहीं। सुने सैयद साहब, किताब भी आपकी, चॉइस भी आपकी, ये नहीं हो सकता। किताब भी आपकी, चॉइस भी आपकी, ये हो नहीं सकता। हम क्या आपका इस्लाम लेंगे क्या? हम तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे मुल्ला नहीं लेते, सही हदीस को आके रिजेक्ट कर रहे हो। तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा मुल्ला नहीं लेंगे, सही हदीस को आके रिजेक्ट कर रहे हो। क्या औकात है तुम्हारी सही हदीस को रिजेक्ट करने की? बताओ क्या हम आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग लेंगे कुरान की? अगर हम आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग ले तो हम पूरा के एक्स मुस्लिम हो जाएंगे। अच्छा, आप किसी मदरसे में जाकर के सैयद चचा ये कह सकते हो कि मैं हदीसों को नहीं मानता? अरे वो तो जाहिल है, वो मैं उनके सामने जाके क्यों बोलूं? जाहिल वो भी हैं, और सूरह जुमा की आयत पढ़े तो आपके नबी भी उम्मी थे, और लिखा है उम्मियों के लिए उम्मीद। मैं भी उम्मीद हूँ। हाँ, तो अच्छा है समीर साहब, देखें जब व्यू पॉइंट आ जाए ना पूरा, तो फिर किसी और को ले, फिर ये कचबहसी हो जाती है। वो सारा वो जलेबियां बनाते जा रहे हैं, फिर उन्होंने गलत कह दिया। मैं आपको ठेस पहुंचा रहा हूँ, आपके अकल को ठेस पहुंचा रहा हूँ। भाई अकल को तो ठेस तुम्हारी पहुंच रहा है। तो मैं पहले वाले डिस्कशन पे थोड़ा सा इनको विदा करने से पहले, इनसे बाय बाय होने से पहले, पिछले वाले पॉइंट पे मैं बस एक पॉइंट फिर से पूछना चाहूंगा सैयद भाई, कि वो गाली आपको मैंने पूरा पॉइंट दे दिया, चलो आपके लिए मैंने मान लिया, सिर्फ हालांकि एथिस्टों को नहीं था, लेकिन सिर्फ एथिस्टों को बताया, आपके हेल्प के लिए मैंने आपको पूरा पॉइंट दे दिया, चलो एथिस्टों को दिया। पर अल्लाह ने जब कहा था कि किसी को भी गलत नाम मत दो, तो वो चीज यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? मुझे बस इतना बता दीजिए भाई। अल्लाह किस वजह से बताया एथियस्ट को? वो जानवर इसलिए है कि वो अकल इस्तेमाल नहीं करते। क्यों है नहीं है वो पॉइंट। अरे सुनो सैयद भाई, अच्छा अहमद साहब मुझे एक सेकंड दीजिए प्लीज, सो सॉरी, मुझे एक सेकंड दीजिए। सैयद भाई मेरी बात पे थोड़ा फोकस कीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी ये पूरा पॉइंट दे दिया है कि एथिस्टों को कहा है, किसी वजह से कहा है, क्यों कहा है, वो बुरे हैं, वो नहीं मानते, पूरा पॉइंट आपका, मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूं कि डेफिनेटली एथिस्टों को कहा है, अल्लाह ने कहा है, और उनके अल्लाह के कहने का ढेर सारा वैलिड रीजन है। लेकिन अल्लाह जब स्टार्टिंग में बोल रहा है किसी को भी गलत नाम से मत नवाजो, उसके बाद अल्लाह किसी को कुछ रीजन से नवाज रहा है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? अच्छा, अल्लाह क्या बोल रहा? बुरे उससे मत बोलो, मगर यहाँ पर अल्लाह ये बुरे उससे नहीं बोल रहा। यहाँ पर अल्लाह इसलिए बोल रहा है कि ये एथियस्ट जो है ये, अरे क्यों आप फिर से वहां आ रहे हो कि अरे नहीं मैं भाई रिपीट में भाई बोंगिया नहीं सुनूंगा। मैंने आपको ऑलरेडी पूरा पॉइंट दे दिया है कि किसी वजह से बोल रहा होगा, एथिस्टों को बोल रहा होगा, किस वजह से बोल रहा होगा, वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। मैंने आपको पूरा पॉइंट ये दे दिया कि डेफिनेटली किसी रीजन से अल्लाह बोल रहा है। लेकिन अल्लाह ने जब पहले ही कह दिया कि किसी को भी बुरे नाम से मत नवाजो, उसके बाद भी रीजन कुछ भी हो, अगर वो बुलाता है किसी को बुरे नाम से, तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं है? मेरे को इतना बताइए बस। ये सिर्फ अल्लाह कंपेयर कर रहा है एथियस्ट से जानवरों को। भाई साहब ये जवाब नहीं देंगे, रहने दें, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लोगों का भी। ये जो है ना, नहीं है, इनके पास जवाब है ही नहीं। ये अपने इस्लाम का, कुरान का दिफा नहीं कर सकते। ये जो है ना, वो जो कहते हैं ना, सांप गुजर गया और लकीर पीट रहे हैं बैठ के। मतलब ऐसा बात है कि मैं बता दूं कि मैं किसी को भी, देखिए फिर से मेरे वर्ड पे फोकस कीजिए, किसी को भी गाली नहीं देता। मैंने अपना स्टेटमेंट रखा इच्छा मित्तु ने, मैं किसी को भी गाली नहीं देता। फिर जब सैयद आता है तो मैं उनको देख के भाई दो तीन गाली दे दिया। तो जब सैयद बोलेगा कि भाई तुमने मेरे को गाली क्यों दी, तो मैं बोलूंगा कि भाई तुम जाहिल हो इस वजह से दी। तो बोलेगा तुमने तो कहा था किसी को भी गाली में नहीं देते, तो मैं बोलूंगा नहीं तुम जाहिल हो ना। वो बोले नहीं तुमने कहा था किसी को भी गाली नहीं देते, मैं भी तो किसी को भी, मैं हर कोई में पढ़ता हूँ। नहीं बोला नहीं तुम जाहिल हो, तो ये सेम चीज कर रहा है। मेरे बोलता हूँ बिल्कुल क्लियर आ गई है और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब वो क्या करें? उन्होंने कुछ तो बोलना है ना, ये दिखाने के लिए कि उनका कुरान और उनका रसूल सच्चा है। कुछ तो बोलना है ना।
وہ سمجھتے ہیں کہ شور مچانے سے سچائی چھپ جائے گی, ان کا قرآن کا جو ہے نا وہ جو ہے بھانڈا جو پھوٹ رہا ہے وہ بچ جائے گا. نہیں بچے گا, شور مچانے سے نہیں بچتا. مجھے اجازت دیں گے سمیع صاحب؟ بالکل سر, شمت صاحب بہت بہت شکریہ سر, آپ آئے اور چلے اتنی بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی, اتنا اچھا ڈسکشن ہوا. تھینک یو سو مچ. ہاں, میرا ارادہ تو لمبا بیٹھنے کا تھا لیکن میں کافی لمبا بیٹھ گیا, چونکہ میں نے کہا چلیں آج ایک موقع ملا تو بیٹھے رہیں. تو کافی سارے کام ہیں اور مجھے وہ اب بہت لیٹ ہو رہا ہوں تو میں جانا چاہتا ہوں. ٹیک کیئر, ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. اوکے. Thank you.